they are not, although mostly we discuss them, that we as a receiver, we also interpret them as good listening skills, that when we are listening or reading or receiving some messages, we should keep ourselves free of those biases. Not only that, we should also keep in mind the all those backgrounds of social, cultural, linguistic abilities, cognitive barriers form receive sender's edge also. Okay, maybe the sender, because he is that type of a person, or that is the context situation into which he is communicating to us. So we should consider all those things side by side. So it's a holistic process, holistic view. Okay, or it's all these elements. Nothing we can specify that this hurdle or this barrier is related to the receiver's end or to the sender's end. They are all together mingled up and all the time happening and are always there. We cannot remove them 100%. One thing is sure. So while keeping all these things in mind, we should we should plan and we should conduct our communication accordingly. Same at the same time, while receiving the information, being the other end of the communication process, when of course it's a cyclical as it is a cyclic process, whatever we are going to receive, we are going to respond accordingly. So it is very much required that our understanding of the written or verbal words is efficient at the same time. अब इसकी मैं एग्जांपल ये देती हूँ कि मैं अपनी तरफ से जहाँ ये कोशिश करूँगी कि आप लोगों को हर चीज़ समझ आ जाए और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है सारी जिम्मेदारी मेरे पे, बल्कि आप लोग जो रिसीविंग एंड पे हैं, आपको भी उतना ही उसमें एफर्ट करनी पड़ेगी और मेरे बताई हुई बातों को या कॉन्सेप्ट्स को ट्रू सेंस में कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा. बिकॉज the next step is going to be your evaluation. I'm going to give you some questions and you have to answer those questions, of course in written format. So you should be able to deliver or to explain what you have understood. So these are the things which, or you should be able to understand the written command or the written text or the written question, in other words, in a better way. Only then you would be able to answer that question. So it's a two-way process. Whatever is being taught to you, you should keep in mind that these attributes or these qualities are required by both of the main components of the communication process, the receiver or the sender. Get it? Any question, any queries? कोई अब तक का जो concepts पढ़े हैं उससे related? Is there any? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so we are going back towards our presentation जो हम कर रहे हमने शुरू की थी, स्पीकिंग स्किल्स. अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा क्या वो होगा, हमारी असेसमेंट क्या होगी. अगर कैंपस खुल जाता है, ऑनलाइन कैंपस खुल जाते हैं, सॉरी ऑनलाइन कह रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाते हैं और ऑन कैंपस क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो यू वुड बी गिवन अ टास्क ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. हम उसका कैसे करते हैं अरेंजमेंट, दैट एवरी स्टूडेंट इज असाइंड विद एक आपको एक इमेज, एक पिक्चर असाइन हो जाएगी, उसका एक नंबर होगा. ठीक है ना, वो एक फोल्डर है मेरे पास पिक्चर्स का, विच आई एम गोइंग टू असाइन टू एवरीवन वन पिक्चर. आपकी एक स्पीकिंग एक्टिविटी होगी जिसमें एक आप क्लास में खड़े होके द पिक्चर वुड बी डिस्प्लेड थ्रू द मल्टीमीडिया एट योर बैक, और आपने अपने क्लास फेलोज को, अपने ऑडियंस को 1 मिनट के अंदर अंदर you have to provide present some views regarding that picture. Get it? So keep this in mind. Why I am giving you this task? Because अब जब मैं आपको ये public speaking skills पढ़ा रही होंगी, तो you should be able कि आपने वो task कैसे perform करना है. Get it? अच्छा, और अगर in case हमारी classes online रहती हैं और हमारी वो वाला पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी इस तरह नहीं हो सकती, सो व्हाट कैन बी डन कि मैं आपको एक एक जो टॉपिक असाइन कर दूंगी, असाइन योर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स.
उसमें से कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करके, टॉपिक भी नहीं बल्कि वो आप कह रहे पॉइंट्स हैं, आपने 1 मिनट के लिए अपने घर में अपनी जगह पे रहते हुए अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी होगी while you are speaking on to that topic। और वो वीडियो जो है आपकी मार्क्ड असेसमेंट होगी और उसके अकॉर्डिंगली आपके एवेल्युएशन होगी और आपके नंबर आपको असाइन किए जाएंगे। गेट इट? सो व्हेन यू आर, अब ये मैंने आपको एक टास्क बता दिया, while keeping that task in mind that you have to perform a public speaking activity, no, you would be able more to relate, so you should keep in mind 3 general or main purposes। मैंने आपको एक पिक्चर असाइन कर दी या आपको एक टॉपिक, एक वर्ड दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज डिप्रेशन, ठीक है, और पिक्चर कुछ भी हो सकती है, या अब मैं इस वक्त आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपने लोगों को बताना है, बोलना है डिप्रेशन के टॉपिक पे। सो दो 3 जनरल मेन पर्पसेस वुड बी टू इन्फॉर्म, टू परसुएड, टू एंटरटेन। that you have to either you have to inform people about something with regard to depression, or you have to persuade the audience कि we should pay attention to this। So उसके अकॉर्डिंगली अब आप देखें कि अगर ये तीनों पर्पसेस बदल जाते हैं तो सेम टॉपिक की कंटेंट बदल जाएगी। अगर आपने डिप्रेशन ही टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा मैं रिकॉल करती हूँ पिछले साल हमने क्या दिया था, चले ड्रग अब्यूज दे देती हूँ, ड्रग अब्यूज है, ठीक है ना। अगर इंफॉर्मेशन देनी होगी तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि ये टाइप्स की ड्रग्स होती हैं और ये टाइप के इसके हैजर्ड्स हैं। अगर पर्पस टू परसुएड है तो आपका उसी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट बदल जाता है, एंड यू आर ट्राइंग टू परसुएड पीपल फॉर समथिंग दैट, वो कुछ भी हो सकता है, दैट drugs should be banned or that drugs could be allowed, whatever is your point, ठीक है ना, वो बाद में होगा। लेकिन उसमें आपका लोगों की तरफ जो आपकी कंटेंट है, the way you're going to tell people is going to change। Topic is the same। If you wanted to inform about something, your tone, your words are going to be different। If you have a persuasive aim, then your words and your style is going to be different। And if you are there to entertain on the same thing, तब भी आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपका वर्ड्स कंटेंट भी, और आपका the way you are going to present it, the way you are going to speak। So remember, you have to always keep in mind the purpose, whether you are there to inform or you are there to persuade or you are there to entertain। To inform, if the purpose is to inform, हमने ये सब पढ़ लिया है, I expect you to tell me something। If it is inform, it is to expand or broaden your listeners' knowledge। Example, lecture, gun safety demonstration, sales report। If it is to persuade, it is to change what your listeners think or do। For example, अभी तक हम जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उसको किस वे में आप कंसीव करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिवली ना। अगर अभी मैं आपको बता दूं कि ये आपका क्लास फेलो या ये पर्सन जो हु इज देयर इज अ ड्रग एडिक्ट, तो एक आपकी पहली जो वो होती है फीलिंग होती है, ओह स्टे अवे, ठीक है ना, यही होती है ना, गेट इट ना। अब सब लोग ऐसे ही करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये चाह रही हूँ कि मैं अपने लिसनर्स को या अपने ऑडियंस को ये बताऊं कि प्लीज डू नॉट डू दिस। They are miserable and they need our attention and they need some love and affection, so we should not leave them alone, or we should pay more care or more good attitude towards them, and we should try to bring them back or rehabilitate them, or we should help them, get it? So I would be trying to change what my audience are already having or thinking or having the views। No, in business context ये बिल्कुल डिफरेंट एग्जांपल दी गई, अ सेल्स रिप्रेजेंटेशन, अ कैंपेन स्पीच, अ क्लोजिंग आर्गुमेंट इन अ कोर्ट ट्रायल। जो भी मेरा टॉपिक होगा, जो भी मेरा पर्पस होगा, उसके अकॉर्डिंगली मेरा एम बदल जाएगा। टू एंटरटेन है अगर, तो ऑफ कोर्स हमें लोगों को, ऑडियंस को खुश करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर डिनर स्पीचेस होती हैं, वेलकम स्पीच होती है, स्टैंड अप कॉमेडी या कुछ भी हो सकता है। नाउ डिटरमिनिंग द स्पेसिफिक पर्पस, फिर हम पर्पस के ऊपर स्पेसिफिकली आ गए।
फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्पस था टू परसुएट, तो फिर मैं उसके अंदर मेरा स्पेसिफिक पर्पस ये हो गया कि मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि ड्रग एडिक्ट्स की रिहैबिलिटेशन के लिए हमें कुछ करना चाहिए. गेट इट? The specific purpose statement include your general purpose, the attendant audience, the desired results. Remember, मैंने देखना ये है दूसरी चीज, पर्पस while keeping in mind the purpose, कि मैंने लोगों को अंडर दिस टॉपिक ये कन्विंस करना है या ये इस बारे में इन्फॉर्म करना है. फिर मुझे दूसरी मेजर चीज जिसको तवज्जो देनी है वो अपने ऑडियंस को देनी है. अब अगर मेरे ऑडियंस के अंदर स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स माय वर्ड्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, माय स्टाइल इज गोइंग टू बी डिफरेंट. अगर मेरे ऑडियंस में कोई हायर अथॉरिटीज हैं या मेरी एक जनरल किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से है, फॉर एग्जांपल यही टॉपिक है, मैं स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी के बात कर रही हूँ या मैं यूनिवर्सिटी के एडमिन प्रोफेसर्स लेक्चर्स उन लोगों के साथ बात कर रही हूँ, तो मेरा टोन बदल जाएगा, मेरा उनसे जो डिमांड होगी उसके फर्क हो जाएगा. ठीक है? डिजायर्ड गोल और रिजल्ट्स. फिर मुझे ये भी देखना है कि मैं इन द एंड चाहती क्यों हूँ. द स्पेसिफिक पर्पस स्टेटमेंट इंक्लूड पर्पस, इंटेंडेड ऑडियंस, डिजायर्ड रिजल्ट्स. ठीक है ना? स्टूडेंट्स से मैं बात कर रही होंगी तो उस वक्त मैं सूरत में ये चाह रही हूँ कि those people who are drug addicts, you can find them among yourselves. if अगर स्टूडेंट बॉडी में से हैं, they need support, आप उनकी हेल्प करें, हेल्प ग्रुप बनाएं उनकी थेरेपी के लिए या उनको जो भी कह रही होंगी. अगर मैंने टीचर्स, एकेडेमिया या एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी होंगी तो मैं कहूँगी कि उनकी रिहेबिलिटेशन के इंतजाम करें, उनको गाइड, एक्स्ट्रा क्लासेस दें या कुछ भी करें. डिजायर्ड गोल, मेरा अल्टीमेट क्या है, ये मुझे अपनी पर्पस की स्टेटमेंट में ही शामिल कर देना चाहिए. दैट दिस इज व्हाट आई वांट. आर यू गेटिंग इट? व्हेन यू Yes, आर. ma'am. अब अगर मैं आपको एक टॉपिक भी असाइन कर दूं और कहूँ इससे बोलो, तो ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए. जो मैंने आपकी एक्टिविटी की असेसमेंट करनी है ना, चाहे वो कैंपस पे हो, चाहे मुझे आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिले, आई वुड लुक फॉर ऑल दीज थिंग्स इनटू योर स्टेटमेंट, फर्स्ट वर्ड्स. यू अंडरस्टैंड दिस? मैम ये जो अगरचे मुझे हम्म रिजल्ट्स और गोल जाएंगे भी ऑडियंस पे डिपेंड करते हैं ना, कि ऑडियंस अगर सामने स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उस ऑफ हिसाब से हम कोर्स, या फिर आगे इन जैसे एग्जैक्टली जैसे अगर मैं पब्लिकली अपने टॉपिक अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ. आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं चैरिटी की जो अपने कैंपेन चला रहे होते हैं, है ना. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जो पिछले दिनों बहुत ज्यादा एक जैसे शौकत खानम का फंड रेजिंग प्रोग्राम होता है ना, कैंसर हॉस्पिटल का, होता है कि नहीं होता, वो लोग Yes. कर रहे होते हैं. ठीक है? अच्छा, एक अखुवत फाउंडेशन है डॉक्टर साकिब अमजद की, वो लोग कर रहे होते हैं. तो जब वो कन्विंस करने लगते हैं थोड़े से दूसरे जनरल पब्लिक को, सो दे आस्क फॉर मल्टीपल थिंग्स, कि वो उसमें ज़कात और उसके लिए कहते हैं, और वो उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें शामिल करते हैं. जब वो स्टूडेंट बॉडी को एड्रेस करते हैं तो वो एजुकेशन या उसके ऊपर आते हैं. तो जब वो अगर उन्होंने कहीं बच्चों को से हेल्प लेनी है तो वो बच्चों के लिए बच्चों के को इन्वॉल्व करके उस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं. यू हैव सीन दिस और नॉट, कि एक ही चीज को, एक ही पर्पज है उनका, फंड रेजिंग, लेकिन अपने ऑडियंस के हिसाब से वो डिफरेंट अपने स्ट्रेटजीज जो हैं बदलते रहते हैं. गेट इट? Okay, what else you have to do when you are there to address the audience or have a public speaking activity? First of all, you have to determine the specific purpose. अच्छा, ये तो मैं आपको, because मेरा टॉपिक ऐसा है कि मैं आपको जनरलाइज्ड या सोशल टॉपिक्स देती हूँ, लेकिन think of these things in a purely business situation, in a work environment. So what would be the purpose? Could be making audience aware of some policies, making audience, ठीक है ना, persuade to work for certain policies, और इस तरह की. फिर वो चीजें, वो इसको थोड़ा सा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या उसके रेफरेंस में भी इन चीजों को साइड बाय साइड आप चलाते हैं. आई गिव एग्जांपल फ्रॉम द सोशल फिनोमेना, बिकॉज why? Because
मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं आपकी जनरलाइज्ड व्यूज लेना चाहती हूँ, और मेरा पर्पस ये होता है कि मैं साइड बाय साइड आपकी मॉरल एजुकेशन का भी और आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सिटीजन या एज एन एडल्ट पर्सन टुवर्ड सोसाइटी हैं, उसके लिए भी आपको तैयार करती जाऊँ। लेकिन आप इन सब चीज़ों को प्योरली बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं। गेट इट? कि आपने फोकस करना है पर्पस के ऊपर। तो जो भी आप सीख रहे हैं ना, वो अगर आप बेसिक सीख जाते हैं तो आप उसको सब जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर दैट। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूंगी। मैंने आपको एक बेसिक परसुएसिव ऐसे लिखना सिखाया है ना, उसमें आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि आपने वोट एवर, पहले आपने एक थीसिस स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करनी होती है, और फिर अपने पूरे उसकी ड्राफ्ट को उन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर कंक्लूड करना होता है ना। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की राइटिंग सिखाई। अच्छा, उस वक्त स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे होते, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने कौन सी राइटिंग करनी है, हमने कौन से एसेज लिखने हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या आगे जाके, अदर देन दिस कोर्स। तो मेजोरिटी ऑफ यू, लेट मी से 80% उसको कोई तवज्जो नहीं देते। जितने लोगों ने भी मुझे ऐसे लिख कर दिए, चाहे वो एग्जाम में था चाहे दूसरा था, उसमें से आई वुड से हार्डली 5%, और ज्यादा से ज्यादा 6-7% ने हकीकत में वो स्ट्रक्चर फॉलो किया या थीसिस स्टेटमेंट बनानी सीखी। क्योंकि नो वन इज थिंकिंग कि ये उसको जिंदगी में कभी जरूरत पड़ेगी। इट हैपन्स ऑलवेज, इट हैपन्स एवरी ईयर। और फिर मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो इस वक्त आपके 4th 5th 6th 7th 8th सेमेस्टर में हैं, जब उनको जिंदगी में कुछ लिखना पड़ता है, दे हैव टू राइट अबाउट देमसेल्फ, सम रिपोर्ट, सेल्फ एक्सप्लेनिंग एसेज, या बाहर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, देन दे सेंड मी ड्राफ्ट्स कि आप काइंडली इसको बता दें इसमें हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। और हर चीज में वही स्ट्रक्चर चाहिए होता है। इवन अभी आपको जो रिक्वेस्ट लेटर्स या अभी आप जो लिखना सीखेंगे ना, उसमें भी वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, वही फॉलो होगा। दिस इज यू आर गोइंग टू लर्न कि वही स्ट्रक्चर होगा कि एक आपका फर्स्ट पैराग्राफ योगा फोकस्ड होगा आपके एम के ऊपर कि आपने क्या कहना है, और उसके 3 बॉडी पैराग्राफ होते हैं आपके एसेस, आपके सॉरी लेटर्स का, आपके रिक्वेस्ट एप्लीकेशंस का, सबका वही स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको प्रैक्टिकली जिंदगी में हर वक्त जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह ये जो हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, इसमें हम एक ब्रॉडली आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद सम एग्जांपल ऑफ सोशल issues, but the same things are going to be focused or going to be the main points of your 100% purely business oriented public speaking. Get it? चाहे आप पॉलिटिशियन बने, चाहे आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, चाहे एक अच्छा एम्प्लॉय बने, यही चीजें होती हैं। गेट इट? आपके स्टेटमेंट में आपका पर्पस होता है, आपने ऑडियंस को रखना होता है जहन में, और अपने डिजायर्ड रिजल्ट। So the most important second thing is that you have to analyze the speaking situation or the context. Get it? Now, how do we analyze the speaking situation? The speaking occasion or the audience. Audience के अंदर occasion वही वाली बात है कि कोई business context हो गई ना, कि किस मौके पे आपको बोलना है, आपको अपने इंटरव्यू के लिए बोलना है, आपको क्लासरूम में लेक्चर के लिए बताना है, बोलना, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, अपने टीचर को फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन हो रही है तो आपका ओकेजन क्या है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन है या क्लास में स्पीकिंग एक्टिविटी है, और वट एवर इज द सिचुएशन. Audience. Why you have to keep in mind the audience? Because there are further 4 sub I would not say topics, further 4 areas which you need to pay attention. Audience के interest क्या है, audience का attitude क्या है, audience की already knowledge क्या है, demographics क्या है उनके. ठीक है? आप अपने knowledge, for example, you are defending your thesis in front of a highly qualified teachers. आपने एक research किया, आप उसको कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, उसके लिए
वो स्पीकिंग एक्टिविटी है। तो आपने ये देखना है कि उनको क्या चीजें इंटरेस्ट करती हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है। ऑफ कोर्स इस केस में आपको पता है उनका एटीट्यूड वुड बी टुवर्ड्स एवेल्युएटिंग यू, कि वो आपको एवेल्युएट कर रहे होंगे, उनकी नॉलेज क्या है। नेवर ट्राई टू बी स्मार्टर देन योर ऑडियंस, कि आप उनको चक्कर दे सकते हैं, ऐसी कोशिश मत करें। उनकी नॉलेज को जहन में रखते हुए बात करें। डेमोग्राफिक्स काउंट्स अ लॉट, ठीक है, कि किस एज ग्रुप के हैं, उनके अंदर लेडीज हैं, उनके अंदर बच्चे हैं, या उनके अंदर जेंट्स ज्यादा हैं, ये सारी चीजें। इफ यू आर देयर टू एड्रेस अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, you have to keep in mind all these 4 points, all these 4, let me say, areas. Then you have to prepare or search for your speech, your words, ये आपकी word selection उसमें बता जाती है. So what could be the sources of information? Yes, मैम डेमोग्राफिक्स का क्या मतलब है, उसकी जरा एक्सप्लेन करें। demographics, हाँ, डेमोग्राफिक्स में उनके सारा आ जाता है, एज और जेंडर ऑफ द पीपल। गेट इट? डेमोग्राफिक्स जो है एक टर्म है जिसमें लोगों की, जो आपके ऑडियंस हैं, जो आपके जिन लोगों के आगे आप बोल रहे हैं ना, ठीक है ना, उसके अंदर सर्टन ह्यूमन पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे एज, इनकम लेवल्स, ठीक है ना, जेंडर भी इसमें आ जाती है किसी हद तक, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जो उनके मसलन आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं, वो उनका सोशली वो कहाँ है, उनकी कौन से एज ग्रुप से है, कौन से इनकम लेवल्स के साथ उनका आप रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। गेट इट? यस मैम। अच्छा जी, आगे 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 क्या, देन उसके अकॉर्डिंगली आप अपने वर्ड सिलेक्ट करोगे ना। आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। आपने कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, अगर आपने एक एलीट क्लास के पढ़े लिखे लोगों से बात करनी है तो आप और तरीके से समझाओगे। आपने थोड़ा सा वर्किंग क्लास या मजदूरों में जाके बात करनी है तो उनको आप ये तो नहीं कहेंगे, आप उनको उनके तरीके की से समझाएंगे, कन्विंस करेंगे ना। तो ये सारी चीजें आप क्यों जहन में रखेंगे, उनका वर्किंग सिचुएशन, वो कहाँ काम करते हैं, उसके हिसाब से यू आर गोइंग टू चेंज योर वर्ड्स। अदरवाइज आपकी वही स्पीच, अगर आप जो आपने प्रिपेयर की हो, फॉर एग्जांपल एसओपी से रिलेटेड आपने कुछ बताना है और उसमें आपके जो ऑडियंस हैं वो एक डॉक्टर्स कम्युनिटी है, ठीक है ना। आप समझें कि आपने एक हॉस्पिटल में बतानी है कि कोविड के उसमें क्या हो सकता है। मतलब ऑफ कोर्स वी बिलीव कि डॉक्टर्स को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन आप खुद सोचें कि जब ये पेंडेमिक आई है तो हर जगह जरूरत पड़ी थी ना इसकी, डॉक्टर्स को भी शुरू में गाइड करना पड़ा था दैट यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस और आपको इस तरीके से इससे बचना है। तो वहाँ के जो उनके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू people working in the offices, then compared to the people working in the household or whatever, ठीक है ना। तो हर एक के हिसाब से आप की सेम टॉपिक के अंदर बातें बदल जाती हैं। इसी तरह जैसे आपको मैं कह रही हूँ कि अगर आपने फंड रेजिंग भी करनी है तो किन लोगों से आप फंड रेजिंग करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये अगर आप जहन में नहीं रखेंगे तो आप एक इफेक्टिव कैंपेन नहीं चला सकते। सो देन यू हैव टू research for your words. So what could be the information? Your personal knowledge, library resource, internet, interview. ठीक है, आपको जाना पड़ रहा है। यस यस बोले, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था। हेलो, नो वन। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या क्या है, लाइब्रेरी रिसोर्स, इंटरनेट, आपकी पर्सनल नॉलेज, आपके इंटरव्यूज। आपको आपके ऑफिस ने टास्क दिया, कोई भी, मैंने आपको बोला जैसे कोई प्रोडक्ट की सेल है और कोई कैंपेन है और आपको जाके वो एक ऐसे एरिया में करना है जिसकी क्लाइमेट से आप वाकिफ नहीं है, जिसके लोगों की एजुकेशन लेवल से आप वाकिफ ही नहीं है, वो सारी चीज़ें जो भी हमने पीछे डिस्कस की हैं। So what you have to do, you have to get help from internet, library resources, or you can also conduct some interviews. Get it?
ये इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर कोई अब तो बहुत बातें पता चल गई आपको, अगर यहाँ पे बैठे लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के बारे में कोई पॉलिसी बनानी है या कुछ, तो दे कैन इंटरव्यू ऑफ यू ऑफ देम, ताकि उनका आपको वो अंदाजा हो जाए उन्हीं सारी चीजों का कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं, वहाँ के डेमोग्राफिक्स क्या हैं, या वहाँ के एजुकेशनल लेवल्स क्या हैं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। अब जैसे वहाँ का लिटरेसी रेट 100% है, ऑल्दो इट्स अ फार ऑफ एरिया। तो अगर आप ये सोच के कि वहाँ के लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, या जैसे कि हमारे रूरल एरियाज होंगे वहाँ के होते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके वो वर्ड्स बेकार हो जाएंगे। सो यू कैन इंटरव्यू someone, a few people from there, and you can have an idea of all those things. Get it? ये सारी प्री पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज हैं कि जब आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। Then supporting material. While researching for the speech topic, look for material that will support the main topic. अच्छा, एक बात प्लीज ध्यान में रखें, मैं यहाँ पे स्पीच से मुराद डिबेट्स नहीं ले रही हूँ खुदा के लिए। और व्हेन आई असाइन दिस, सो इवन क्योंकि आप लोगों ने, जिन बच्चों ने ये तवज्जो से नहीं पढ़ा होता, उनको जब मैं टॉपिक देती हूँ, चाहे वो ऑनलाइन उसके लिए है असेसमेंट के लिए, चाहे ड्यूरिंग द क्लास है, वो अपने ज़हन में ये रखते हैं कि उन्हें तकरीर करनी है, तो वो आके डिबेट्स के वे में शुरू हो जाते हैं। प्लीज, इट्स नॉट फॉर डिबेटिंग ये सारी बातें। ऑल्दो डिबेट्स जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, गेट इट, बट इस वक्त वो हमारा वो चीज नहीं है कि मैं आपको डिबेट्स नहीं सिखा रही, गेट इट। While researching for the speech topics, look for material that will support the main topic. Types of supporting material could be definition, example, stories, comparison, statistics, expert opinion. Now, इसमें कौन सी चीज है जो आपको नहीं समझ आ रही? जब आप लोगों को बताने लगे हैं तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशंस मुख्तलिफ टर्म्स की। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के ऊपर लोगों को चाहे इंफॉर्मेशन देनी है, स्टैटिस्टिक मतलब कुछ भी देना है, चाहे कन्विंस करना है, चाहे कुछ भी करना है, आपको पता ही नहीं खुद इटसेल्फ अगर कोई पूछ ले आपसे कि व्हाई कोविड दिस कोरोना वायरस इज कॉल्ड कोविड-19 और व्हाई इट इज गिवन द नेम ऑफ कोरोना, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स, आप जब तक कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे आपकी बात ऑडियंस को समझ नहीं आएगी, गेट इट। इसकी एक मिसाल मेरा लेक्चर भी है। I always try to relate the taught concept with some examples or with some situations. Stories, of course, stories, कोई छोटी सी स्टोरी का मतलब ये नहीं स्टोरी पे फोकस कर लो, ठीक है, जिसे हम एनेक्डोट कहते हैं कि उसकी तरफ इशारा, और वो कंपैरिजन्स, ये भी बहुत काउंट करता है। जैसे हम बताते हैं कि हमारा लिटरेसी रेट ये है, फलां का ये है, हमारा कोई भी हम बता सकते हैं। कंपैरिजन इज द मेन थिंग जिसके जरिए हमारी बात आगे बढ़ती है। स्टैटिस्टिक्स, वी प्रोवाइड विद सम नंबर्स, इतने परसेंट ये हो गया, इतने परसेंट वो हो गया, वट एवर इट इज। एक्सपर्ट ओपिनियन, हम किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं, कोट कर सकते हैं या उसको शामिल कर सकते हैं टू स्ट्रेंथन आवर व्यू पॉइंट, गेट इट। टीवी के जो टॉक शोज होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक एक्सपर्ट को भी साथ बुला लेते हैं जो उसके बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्म कर सकते हैं, व्हाटएवर इज द टॉपिक। नो, देन ऑर्गेनाइजिंग योर स्पीच। अब आपने अपने जो कुछ बोलना है, ठीक है ना, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए ये एक सॉर्ट ऑफ कोट है। टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, देन टेल देम, एंड फाइनली टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम। मीन्स पहले आप उन्हें बताते हैं आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट द harmful effects of drugs, ठीक है, then tell them about whatever जो मैंने सोचा था कि ड्रग्स हमें यूं खराब करते हैं वो करो, एंड फाइनली टेल देम, और फिर आप उसे कंक्लूड कर रहे हैं ये बता के एज आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस, ठीक है, तो फिर आप उसको रैप अप करते हैं। सो दीज 3 सिंपल स्टेप्स वुड हेल्प यू, अगर आप इनको सही समझ लें तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। टेल देम व्हाट यू are going to tell them, then tell them, and finally tell them what you have told them. Now focus on to these 4 lines.
एंड देन टेल मी कि इसमें इसको कितने, आपकी टोटल स्पीच को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया। चलिए बताएं। हेलो, 3 हिस्सों में पहले ना? उसका इनपुट, हाँ बाद में उसकी फिर बॉडी, मेन बॉडी आ जाएगी, और बाद में हाँ, कंप्लेंट, और जो और आपने ऊपर आपकी बताया थीसिस, वो भी आप बीच में। एग्जैक्ट, तो जो आपका ऐसे का स्ट्रक्चर था, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट थी, वो सब कुछ भी यही था कि नहीं था? इंट्रोडक्शन, यस योर स्टैंस, योर कंक्लूजन, गेट इट? वो भी यही सब कुछ होता है ना? यस मैम। आप उनको अटेंशन गेटर के जरिए या ब्रॉड किसी एग्जाम्पल के जरिए अपने टॉपिक तक लाते हैं, फिर अपनी मेन बात कहते हैं, और फिर एंड में उसको कंक्लूड कर देते हैं, दैट व्हाट यू हैव टोल्ड देम। ठीक है ना? ऑफ कोर्स इसके अंदर सिर्फ 3 बात, टेल, टोल्ड, ठीक है ना, और गोइंग टू टेल के अंदर बात है, उसमें साथ वो मेन पॉइंट्स हैं, एविडेंस है, प्रूफ है, एग्जाम्पल्स हैं, डिटेल्स है, ऐसा ही है ना? So this is the main structure. Tell them what you are going to tell them, then tell them, and finally tell them what you have told them. आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें आप क्या करते हैं? सब्जेक्ट लाइन ऊपर लिखते हैं, आप लिखते हैं लीव एप्लीकेशन, ठीक है, या लेटर फॉर व्हाट। आप पहले बता देते हैं कि मैं ये, दिस इज योर डिमांड, सब्जेक्ट line is that. Then in the first paragraph you, while keeping all those necessary elements, जो भी हमसे, जो भी आपने पढ़ना है, करते हुए आप उन्हें बताते हैं कि आपको ये वजह है और ये चाहिए, और फिर in the end आप उसको wrap up करके कह देते हैं I hope you would grant me this or that, ठीक है ना? और finally उनको conclude कर देते हो कि ये मुझे चाहिए या ये मैं कह रहा हूँ, whatever is there. Get it? अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स जिन्हें इस तरह के अपने बारे में, फॉर एग्जांपल आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, गेट इट, वो लेटर लिखना है, या आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और दे आर आस्किंग यू टू राइट अबाउट अ पर्सनल स्टेटमेंट, उसका एक मेन एलिमेंट कंपोनेंट होता है पर्सनल स्टेटमेंट, कि अपने बारे में लिखें। सो उसमें भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल, that I wanted to tell them about my interest, my previous experiences and my future plans. मैं personal statement की बात कर रही हूँ इस वक्त। Then you tell all those and finally tell them that after telling all this and providing evidence of all these things about me, I expect you to do this. ठीक है ना? कि मुझे आप एडमिशन दे दें और so, अगर आप सिर्फ इतने को भी याद रखें तो आपके सारे स्ट्रक्चर सही हो सकते हैं। टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, देन टेल देम, एंड फाइनली टेल देम व्हाट यू हैव टू। गेट इट? Then the main structure, the main points of the speech should constitute 70 to 80% of the total speech time. Remember. अब जो central part है ना, जो central tell them है ना, वो 70 to 80% होगा. Get it? Focus on only 3 to 4 main points. अपने एक वक्त की speech में बहुत ज़्यादा चीजें मत शामिल करें. You can organize your main points in a variety of ways, topical, chronological, spatial. ये डिपेंड करता है कि जो वो 3 पॉइंट जो 70 to 80% टाइम है उसकी ऑर्गेनाइजेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? टॉपिकल, टॉपिक वाइज जो कुछ बताना है उसको टॉपिक में अरेंज कर लें। क्रोनोलॉजिकल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आपने, या जिस तरह उनकी इंपॉर्टेंस है उस ऑर्डर में कर लिया। स्पेटियल, एस जैसे कि चीजें स्पेस्ड हुई हुई हैं, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, कोई भी आप चीज ले सकते हैं। आप अपनी, अब मैं आई गिविंग यू डिफरेंट एग्जांपल एंड यू कैन आल्सो हैव सम क्वेरीज और थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि ये अगर आपने इस टॉपिक पे बोलना है तो उसको कैसे अरेंज करोगे। टॉपिकल ऑर्डर में अगर मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है तो मैं सबसे पहले जी अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड का बता दूं, फिर मैं अपने इंटरेस्ट बता दूं, फिर मैं अपने फ्यूचर पर प्लान्स बना दूं। यही चीज़ें अगर मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करनी है तो मैं सबसे पहले अपनी स्कूलिंग का, फिर यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन या उसमें मतलब किसी ऑर्डर में नंबरिंग में कर लूँ, या मैं एज थिंग्स स्पेशियल ऑर्डर में अरेंज कर लूँ कि देखें एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है, तीसरी तरफ ये है,
ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है आपके मेन पॉइंट्स की, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक एंड द पर्पस। गेट इट। किसी ना किसी फॉर्म में रैंडम प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स नहीं होनी चाहिए, कोई अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक के बाद दूसरी चीज है। गेट इट। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अंडरस्टैंड और नॉट। चलो इसको इस पे थोड़ा सा फोकस करो और मुझे बताओ कि इसमें क्या बात है जो तुम्हें नहीं समझ आई। मैम स्पेटियल ऑर्डर के बारे में बताइए। स्पेटियल के वर्ड ही मीनिंग ढूंढो। किसी के पास डिक्शनरी है इस वक्त, फोन में या कोई बुक फॉर्म में, किसी भी तरह देखो। स्पेटियल के मीनिंग एनीवन? मकामी। मकामी। मकाम। मकामी। मकामी, अच्छा चलो ठीक है, एक आ गया। कोई इंग्लिश टू इंग्लिश वाला भी देख के बताए। ठीक है, मैं मकाम को समझ गई। हाँ, किसी के पास डिक्शनरी नहीं है नालायकों, फोन में भी नहीं है। मैंने खोल लिया, मैम चले मैं गूगल ट्रांसलेटर है, गूगल ट्रांसलेटर। बेटा खुदा के लिए बताए, गूगल ट्रांसलेटर के डिक्शनरी देखा करो। गेट मैम इट। हॉस्पिटल आ रहा है। स्पेटियल का तुमने एंटर ही गलत किया है वर्ड। द वर्ड इज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड स्पेस। ठीक है, स्पेस से मुराद स्पेस आउटर स्पेस नहीं है, जैसे हम कहते हैं इसकी ये जगह है, स्पेस है, ठीक है ना। relating to or occupying having the character of space, relating to or involved in the perception of relationship। ठीक है, जो वो मकामी आपने बोला था वो सही है, मतलब कौन सी चीज किस जगह है। गेट इट। अंडरस्टैंड और नॉट? अभी भी नहीं समझ आया है ना? ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस। मैं आपको स्पेटियल से मुराद मैं कहती हूँ आसान जो लफ्ज जगह, जगहों का ऑर्डर। ठीक है, कौन सी चीज किस जगह आ रही है। ठीक है, जो पहले आती है वो पहले बता दें, जो दूसरे नंबर पे आई दूसरे, मतलब अदर देन नंबर जो है वो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम एक्सप्लेनिंग, आई बीन गिवन द टास्क टू एक्सप्लेन दिस रूम, जहां मैं बैठी हूँ इस वक्त। ठीक है, मैं आप सब लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हैं, है ना। तो अगर मैं इसी वक्त की एक्टिविटी कहूँ कि हर कोई मुझे बताए कि वो कहाँ बैठा है, एक्सप्लेन करे, तो मैंने अगर एक्सप्लेन करें कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं जहाँ बैठी हूँ ये जगह बहुत ही अनकंफर्टेबल है, ये कहना चाह रही हूँ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है इन बोथ वेज। सो आई विल स्टार्ट विद माय सीट। द फर्स्ट ऑफ ऑल, द सीट ऑन टू व्हिच आई एम सिटिंग इज वेरी, कुछ भी कह सकती हूँ कि कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है, मैं उसके बारे में बता दूँ। फिर मैं बता दूँ, अब थोड़ा सा उससे बाहर हट के बता दूं कि यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा है, ये ओवरऑल ऐसी जगह पे है। फिर मैं थोड़ा सा और बता दूं, आउटसाइड दिस रूम देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज इज गोइंग ऑन और देयर इज कंप्लीट साइलेंस, कुछ भी। तो वो मैं आपको, आप अंदाजा कर रहे हो ना कि मैं ग्रेजुअली आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जगह के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो दैट वुड बी अ स्पेटियल ऑर्डर। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक बिल्कुल फिजिकल सेटिंग का बताया जिसमें एक के बाद दूसरी चीज बता दी। Think of this in a working situation, different elements. For example, you are going to advertise, मतलब मैं आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे रही हूँ। आप एडवर्टाइज कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट दैट इज रिलेटेड विद सैनिटेशन। ठीक है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में जैसे ये डेटॉल है या कोई भी सैनिटाइजर है वो है, तो आप उसको यूं बताएंगे एट होम कि एक शख्स पहले अपने घर में है तो वो घर में इसको यहाँ पे केयरफुल रहे, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, कि घर में वो दिखाते नहीं है, एक बंदे को दिखाते हैं कि वो जब ऑफिस जा रहा है तो वो ऑफिस का दरवाजा या ऑफिस में उस सैनिटाइजर का यूज कहाँ कर रहा है, गाड़ी में बैठा है या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो वहां कहाँ यूज कर रहा है। एंड द मोमेंट दैट पर्सन एंटर्स इनटू हिज और हर हाउस,
तो वो अपने बच्चों के साथ या फैमिली मेंबर से मिलने से पहले उस सैनिटाइजर या उसको यूज कर रहे हैं. गेट इट? सो दैट इज स्पेटियल ऑर्डर कि आप जैसे जैसे जो चीज है जगह के हिसाब से आप उसको डिस्कस कर रहे हैं. गेट इट? आप समझ आई? नहीं समझ आई? यानी आपने जो भी आपका टॉपिक है, अब नाउ थिंक ऑफ सम टॉपिक. अब आप मुझे बताएं, गिव मी अ टॉपिक कि इस टॉपिक में पब्लिक स्पीकिंग हो रही है तो उसमें ये तीनों ऑर्डर कैसे होंगे, हम इसको फाइंड आउट करें. तीनों का मतलब ये नहीं कि तीनों होना जरूरी है, कैन बी एनी वन ऑफ देम और एवरीथिंग. गिव मी अ टॉपिक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. मैंने क्या एग्जांपल दी थी शुरू में? जगह की, ये कमरे की, हम्म, मैम रूम की. नहीं वो तो अभी दी थी. पब्लिक स्पीकिंग की बता रही हूँ मैं. फॉर एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि डिप्रेशन का टॉपिक है ना. यस तो आप कह सकते हैं डिप्रेशन. अब अगर टॉपिकल ऑर्डर है, ठीक है ना, आप कहेंगे टॉपिक में आप इस तरह ले लेंगे कि डिप्रेशन अमंग स्टूडेंट्स, डिप्रेशन, या उसको करेंगे उसकी कोई अरेंजमेंट होनी चाहिए आपके जो कंटेंट विच यू आर देयर टू स्पीक आउट, उसकी अरेंजमेंट कोई करें. एक तो अरेंजमेंट ये थी ना कि क्या बताना है, किस तरह बताना है और रैप अप करना है. अदर देन दैट जो आपका मेन पॉइंट्स हैं उनको भी कहीं अरेंज करें. या तो आप उनको इस तरह बता सकते हैं कि डिप्रेशन में कि बच्चों में इस लेवल पे शुरू होता है, एडल्ट्स में ऐसे होता है, बड़ों में ऐसे होता है, ठीक है ना. या आप बता दें कि डिप्रेशन सोसाइटी जब फैमिली से शुरू होता है और फिर सोसाइटी पे और ओवरऑल पूरी दुनिया में या पूरी नेशन पे कैसे उसके असरात होते हैं. या आप किसी भी तरीके से उसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं. आप हमेशा जब भी जिस चीज के बारे में बताते हैं तो किसी एक नैरो कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताते, उसको दूर तक उसके इफेक्ट्स और चीजें बताते हैं. एंड ऑफ कोर्स यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग or the root point of that thing. Get it? So that is that order. It can be topic wise, it can be chronological numbering में, और it can be as the things placed. जैसे कि चीजों का ऑर्डर है उसके हिसाब से. अब किसी को नहीं समझ, अगर किसी को समझ आ गया तो काइंडली हेल्प मी आउट कि एक फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दें. और अगर किसी को नहीं भी अभी समझ आया, यस. मैम स्पेटियल का ऑर्डर मैंने जब सर्च किया उसमें ऐसा दिख रहा था कि अगर कोई चीज है उसका एक जैसे कोई पिक्चर एक्सप्लेन करते हो ना उसमें ना हर चीज का एक एक चीज आप एक्सप्लेन करते हो इस तरह जो के. चीज जिस जगह पे है, ठीक है हाँ ना. हाँ जो सुनने वाले वो इस तरह समझे जैसे कि उसके आप बयान कर रहे हो उसके दिमाग में इस तरह आना चाहिए कि वो वाकई उसके दिमाग में ना हाँ, वो उसका पूरा वो स्ट्रक्चर आ आ गया. जाए. एग्जैक्टली, वो ठीक है. स्पेटियल ऑर्डर है. एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं इस वक्त ये जहां मैं बैठी हूँ, आप लोगों को तो नहीं पता ना मैं किस जगह पे बैठी हूँ, बट इफ आई एम गोइंग टू टेल यू स्टार्टिंग फ्रॉम द सी टू द टेम्परेचर टू द थिंग्स अराउंड मी, तो एक आपके दिमाग में खुद ब खुद पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी ना कि मैं किस वक्त किस जगह बैठी हूँ. गेट इट? नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है, I'll give you two examples and you have to guess that where I am sitting. I'll give you three. I am sitting on a little bit high chair with a straight back. I have a big table in front of me. ठीक है, समझ आ रहा है? I said a chair with a high back, a high chair with a big table in front of me. There are a few dishes onto that table, a large window by my side, and it's not a single chair in that room. There are almost 12 or 10. क्या आपके ज़हन में आया? इतनी सी बात बताने. एक ऑफिस की तरह डाइनिंग टेबल आता है ना. यस मैम. अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जब मैंने हाई चेयर का, स्ट्रेट चेयर का और एक टेबल कहा और ये कहा 10-12 चेयर्स और भी हैं, तो यू वुड बी थिंकिंग दैट आई एम सिटिंग इन माय डाइनिंग रूम ऑन अ टेबल, है ना. यस मैम. ठीक है. अच्छा, अब मैं एक सेकंड सिचुएशन बता रही हूँ. आई एम सिटिंग ऑन अ कंफर्टेबल चेयर. तो स्पेटियल ऑर्डर एक्सप्लेन किया था ना. हाँ एग्जैक्टली, मैं जैसे मैं बैठी थी तो मैंने उस तरीके से बताया तो आपको समझ आ गई ना चीजें. अच्छा, अब मैं बता रही हूँ. थिंक ऑफ अनदर, मैं एक और सिचुएशन बता रही हूँ. आई एम सिटिंग ऑन अ कंफर्टेबल, ठीक है ना, इजी चेयर
ठीक है, देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड मी, बर्ड्स आर चिरपिंग हियर एंड स्मॉल ब्रीज और विंड इज ब्लोइंग। तो आपके ख्याल में मैं कहाँ बैठी होंगी? किसी पार्क में या फिर किसी बाहर पार्क में, किसी हवा ग्राउंड लॉन में, ठीक है ना? चेयर कंफर्टेबल सी है और हवा चल रही है, इसका मतलब है कि आउटडोर में हूँ और मैं कह रही हूँ बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो ऑफ कोर्स मैं किसी पार्क या किसी उस जगह पे हूँ। गेट इट? ठीक है ना? तो आप ये देखें कि जो मेरा ऑर्डर था उसने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी कुछ। गेट इट ना? और अगर ये फिर कौन हाँ ये फिर कौन सा ऑर्डर होगा? नहीं, मैं आपको स्पेशियल, मैंने जब मेरा इस वक्त मैं बताना, मेरा एम क्या था, देखो हर चीज के साथ चीज बदल जाती है ना। मेरा इस वक्त आपको ये गेस पॉइंट देने का था कि गेस, या मैं ये कह रही थी बताएं मैं कहाँ बैठी हूँ, ठीक है ना? तो मैंने जैसे चीजें थी मेरे इर्द गिर्द वैसे बयान कर दी। अब यही स्पेटियल ऑर्डर, ये मत समझो कि ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है ओनली। गेट इट? आपने अब आप जरा थोड़ा सा अपने सोच को आगे लेके जाएं और सोचें कि कोरोना एसओपीज हैं, ईद का मौका है, ठीक है? हमने उसके ऊपर लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है दैट दे शुड फॉलो एसओपीज। तो हम उन्हें क्या क्या बताएंगे? थिंक ऑफ इट। और स्पेटियल ऑर्डर वी आर कीपिंग इन माइंड, हम कहेंगे व्हेन यू आर एट होम, ठीक है ना, ट्राई टू, if you have people, if you have to meet someone and you are at home, try to meet them outside in a airy place with having at least 6 feet distance. If you're going outside to buy first of all तो हम यही कहेंगे stay inside, stay safe or whatever, but if you have to meet people, तो फिर हम उनको कहेंगे घर में मिलना है तो ऐसे मिलें, मार्केट में जाना है तो make sure you are wearing mask and you wash your hands or you are wearing gloves। तो हम जो जो जगह जैसी है हम उसके हिसाब से चीजें एक्सप्लेन करते जाएंगे। गेट इट? अच्छा, यही बात अगर हमने एसओपीज के वे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लेना है तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट your personal hygiene is clear, you are not having any sign and symptom of cough, fever or anything like that. Make sure you are wearing a mask, ठीक है? Your hands are washed, keep a sanitizer along with you, ठीक है ना? If you are going outside and using a public transport, try to avoid touching the doors और हैंडल्स। हम इस तरह की बातें, फिर वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हो सकता है, स्पेटियल भी हो सकता है या टॉपिक वाइज भी हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में बोले। अब मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देती हूँ, जब ये अगर ये हम क्लासरूम एक्टिविटी कर सकते ना तो खुद ब खुद ये चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। कि एक पिक्चर थी, मैं आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जो इमेजेस हम शेयर करके जिन पे बोलते थे ना, उसमें देयर वाज अ पिक्चर, आई रिमेम्बर दैट, क्योंकि उस पर ये बड़े मजे की ये डिस्कशन हुई थी कि एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर बहुत सारी मेडिसिन बिखरी हुई हैं, ठीक है? और एक बंदा बैठा और उसने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। इट वॉज सिंपली अ पिक्चर लाइक दैट। गेट इट? एक टेबल है, उसके ऊपर टेबलेट्स और ऐसे दवाइयां सी बिखरी हुई हैं, मेडिसिन हैं, और एक बंदा बैठा है और उसने सर हाथों से पकड़ा हुआ है, ठीक है ना? अब there were 4 or 5 people who discussed, who informed the audience about that picture, and everyone was having a different perception of that. एक ने कहा this is a patient, he is worried, he is looking at all these tablets and prescriptions. दूसरे ने ये कहा वो कोई डिटेक्टिव है and he was given a task to identify the cause of poisoning among all this, तो वो परेशान है कि इसमें से जो इतनी ज्यादा ऐसी हैं। अच्छा, किसी ने कुछ कहा, तो उसमें अब आपने हर किसी ने, जिसने भी डिफरेंट तरीके से, यानी जिसने भी उसको एक्सप्लेन किया, तो किसी ने कहा कि देखें, सबसे पहले हम यूं देख रहे हैं कि ये ही दैट पर्सन हु इज लुकिंग एट दैट टेबल इज वेरी मच वरिड, वन थिंग इज क्लियर, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना? उसने इस तरह करके इसको स्टेप वाइज क्लियर किया, किसी ने किसी तरीके से किया, किसी ने किसी तरीके से किया, बट देयर शुड बी सम ऑर्डर। अगर आप ऐसे ही रैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स दे दें कि इट कुड बी समथिंग टेबलेट्स प्रेजेंट दिस, और फिर आप टेबलेट से ही बात आगे ले जाएं, या एक शख्स, एक द पर्सन हु इज सिटिंग देयर विद होल्डिंग हिज हैंड
head with both hands. If you are just focusing on that person, keep on telling other things, and you're not, following any order कि आप बताने क्या लगे थे, तो वो एक random सा collection of words हो जाता है. So there should be some organization. Get it? उसके लिए कहा topical, chronological और spatial. I hope that you have understood. समझ आ गई ना बात कि नहीं आई? सोई पड़ी है मेरी क्लास. मैम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो अच्छा, इसमें टाइम वगैरह का आ जाएगा कि पहले कौन सा Exactly. इवेंट हैपन हुआ है और बाद में हाँ, आपको ईयरली रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि कभी 2016 की बात कर दो, कभी 2020 की बात कर दो और कभी 2009 की बात कर दो. स्टेप वाइज ही बताना होगा ना. जी जी मैम एक आपने बार एग्जांपल दे जी दें. मैम बिल्कुल ऐसा आपने कोई तो ऑर्डर लेना है ना कि हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही हैं, तो या तो आपने कोई ईयर वाइज ऑर्डर लेना है, या आपने years ऑफ गुड ग्रोथ या years ऑफ बैड ग्रोथ के हिसाब से कोई तो ऑर्डर लिया होगा ना, अरेंजमेंट की होगी ना आपने उसकी. मैम मीन्स के जैसे कोरोना वायरस की वजह से कल टुमारो को इतनी हुई थी, कल परसों इतनी थी वफात, हाँ, आज इतनी हुई है, इस तरह ये चीज़ कहना चाह रही हैं आप. ये चीज कहना चाह रही हूँ, या आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि 2019 में पाकिस्तान में ये सिचुएशन थी, 2020 में ये है. आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कभी आप 20 की बात कर लेते हो, कभी 21 की बात कर लेते हो, कभी 19 की बात कर लेते हो. सो वो तो कोई ऑर्डर नहीं होगा ना. वो बड़ी लॉजिकल सी लगेगी. हाँ, ठीक है. मैम जो कोरोना वायरस हम के टॉपिक ले लें आप, कि शहरों में इतनी हुई, रूरल एरियाज में इतनी हुई, और या इस प्रोविंस में इतनी हुई, कोई तो आपको डिवीजन या अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ना अपनी इंफॉर्मेशन की. मैम स्पेटियल में उसको किस तरह करेंगे इसी चीज को explain? स्पेटियल एज थिंग्स आर, ठीक है ना, जैसे वो स्पेस हुई हुई है, डिपेंडिंग मैम अपॉन द मतलब कि जो टॉपिक. चीज आप पहले परसीव करेंगे उसको आप पहले बता दें, जो बाद में करेंगे उसको बाद. इट्स नॉट, कोई भी ऑर्डर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक एंड पर्पस. मैम अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी जरूर. स्पेटियल को. दिस इज मैम व्हाट आई एम स्पेटियल लुकिंग में फॉर. इस तरह नहीं आ सकता कि शहरों में इतनी वफात हुई हैं और एग्जैक्टली. गांव वगैरह में इतनी, देहात वगैरह में इतनी, हाँ, इस तरह हो सकता है स्पेटियल में ऑर्डर में. बिल्कुल हो सकता है. या इवन विद इन सिटीज, एक सिटी भी बता रहे हैं तो आप कहो कि जो ये वाले एरियाज थे, ठीक है ना, जहाँ डेंस पॉपुलेशन थी वहां इस तरह हुआ, जहाँ इस तरह के लोग थे वहां इस तरह हुआ, ये जहाँ इस तरह की सिचुएशन थी. किसी भी, मतलब आप एक अमेलगमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते. आपको चीजों को किसी मैम ऑर्डर में डिवाइड करना पड़ता है. मैम यस. जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं उधर जो पीछे एक शख्स होता है जो एक पिक्चर को शो करते हैं जिससे वो एक्सप्लेन करता है ना, जैसे अभी कोरोना है, कोरोना का एक जगह सिटी में ना ज्यादा हलाकत हुई या कोई वो ऐसा पिक्चर एक्सप्लेन करता है जो हर चीज एक्सप्लेन हो जाती है उससे, वो स्पिरिचुअल ऑर्डर में आ जाते हैं ना. एग्जैक्टली, दैट कैन बी एनी ऑर्डर, ठीक है ना. मसलन प्रेजेंटेशन में ईयर वाइज आ रहा है, ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल हो गया. और प्रेजेंटेशन में टॉपिक वाइज आ रहा है, पहले उन्होंने टॉपिक लिया, ठीक है ना, डेथ रेट्स और सॉरी इन्फेक्शियस रेट इन हॉस्पिटल्स, इन स्कूल्स, इन यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, वो स्पेटियल ऑर्डर हो गया. टॉपिक वाइज हो गया, वो विच पॉपुलेशन एरिया इज फॉलोइंग एसओपीज और नॉट. कोई भी टॉपिक ले लें आप, एसओपीज फॉलो करने से कितनी बचत हुई, या उससे कितनी हुई, या उससे कितनी. आगे ना आपको बात समझ. कोई भी ऑर्डर मैम जरूर आपकी इंफॉर्मेशन का क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए. ऑर्डर जो है, यस. मैम जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ये तो स्टेटिस्टिक मतलब स्टेटिस्टिक है ना. आप मेरी बात नहीं समझ रहे. आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, चाहे वो स्टेटिस्टिक्स हैं, वो किसी ऑर्डर में होने चाहिए. यानी जो हम ग्राफ बनाते हैं वो वही वाली आपका जो यही ग्राफ आप. होता है, उसमें जो आप सिलेक्ट करते हैं, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, 1 मिनट के लिए मुझे टाइम दें, 1 मिनट के लिए.
ओनली द थिंग इज कि कोई ऑर्डर जरूर हो। आप जो भी बोल रहे हैं आप खुद सोचें, मैंने ये आपको इन्फॉर्म करना था पब्लिक स्पीकिंग के लिए, तो मैंने किसी ऑर्डर में चीजें बताई हैं या बस रैंडम पॉइंट्स बता दिए? वो क्लास मैम ये तो टॉपिकल ऑर्डर था ना। टॉपिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने एक विजुअलाइज की कि एक पब्लिक एक्टिविटी है, स्पीकिंग एक्टिविटी है ना, उसमें मैंने 1 बाय 1 लिया कि पहले आपने पर्पस आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने ये करना है। मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, या स्पेटियल भी हो सकता है। यू अंडरस्टैंड दिस? ये वो चीज है विच यू पीपल और everyone does it, and if this thing is missing, of course the content or the topic will not be able to be, you would not be able to get your message conveyed, it won't be understood well. मैं आपको एक मिसाल देती हूँ ना, मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाना शुरू किया है ना, टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, टॉपिकल ऑर्डर है, ऐसा है कि नहीं है? 1 बाय 1 मैं किसी ऑर्डर में ही उसको अरेंज कर रही हूँ ना इन्फॉर्मेशन को। अगर अब तक जितनी क्लासेस हुई हैं, किसी एक में मैं उठ के कोई क्वालिटी बता दूं, किसी एक में उठ के कोई क्वालिटी बता दूं, यू वोंट एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट। मैं हर क्लास में आपको इसको चीजों को लाइन अप करके बताती हूँ, रैप अप करके बताती हूँ ना, पिछला भी रिव्यू करवाती हूँ कि नहीं, ओवरव्यू करवाती हूँ कि नहीं, कि ये बैकग्राउंड था, ये एक एक्चुअल सिचुएशन है, और ये दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न अबाउट इट। This is the thing that is always there, and if you are missing this element, your message, चाहे उसके अंदर कितनी information या कितनी ही अच्छी बातें हो, it is going to be lost. Hello, kindly mute. Please mute yourself. जिनके पीछे शोर है. Okay, now developing the main points of your speech. ठीक है, आपने ऑर्डर सिलेक्ट कर दिया, फिर मेन पॉइंट्स कैसे करने हैं? डेवलप ईच पॉइंट इक्वली, यूज एट लीस्ट 1 पीस ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल। ठीक है, अब आपने हर मेन पॉइंट को जो आपने लोगों को बताना था, उसमें ये बात नहीं है कि आपने एक पे तो तवज्जो दी और दूसरे पे नहीं दी। डेवलप ईच मेन पॉइंट इक्वली, यूज एट लीस्ट 1 पीस ऑफ एविडेंस, हर एक को समझाने के लिए एक एविडेंस लें, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल, और जितना सपोर्टिंग मटेरियल हो सकता है उतना कलेक्ट करें। व्हाई? थिंक ऑफ इट, गिव मी अ रीजन फॉर दिस। मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया मिड में, मिड का क्वेश्चन चलो अभी बता रही हूँ। व्हाई इट इज नेसेसरी टू डेवलप ईच स्पीकिंग पॉइंट इक्वली एंड प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल। चलो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये समझ लो मैंने मिड का क्वेश्चन आपको बता दिया। अगर मैम किसी एक चीज बार में दोबारा अगर बताइए। 1 बाय 1 बेटा। मैम अगर किसी चीज में एविडेंस ना हो, इस तरह इफेक्ट ऑडियंस में नहीं करती जिस तरह उसमें एविडेंस हो। अगर आप Exactly. एक बुक का बात करते हैं किसी राइटर का, अगर उसका राइटर का नेम और उस बुक का नेम ना हो तो वो इस तरह दिखता है जिस तरह आप झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए अगर उसको हकीकत में बदलना है तो उस राइटर का नेम होना चाहिए, और अगर स्पीच में कोई बात करनी है तो उसके एविडेंस में कोई सबूत एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। ये आपने मेरा नंबर 2 पॉइंट एक्सप्लेन किया। मैं आपको यहाँ पे एक रुक जाए, मैं एक बात और बता रही हूँ। आई एम फेड अप ऑफ चेकिंग कॉपीड एंड रिपीटेड आंसर्स जो आप मुझे फाइनल्स में देते हैं या कुछ। तो मैंने मिड में ना अब ऐसा अगर टॉपिक दे दिया, एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योर टीचर्स कि वो आपको ऐसे एक काम दे नहीं सकते जिसके लिए आप चीटिंग ना कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ये समझते हैं अपने आप को बड़ा, ये एक बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक कॉन्टेक्स्ट बात होगी, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बताई दैट वी ऑल 3 टीचर्स हैव मेड अप आवर माइंड कि इस दफा हमने आपको बिल्कुल डिफरेंट किस्म का मिड देना है, जिसके लिए ये जरूरत है कि क्लास में सब अटेंटिव हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि यहीं पे इस एक स्लाइड में से भी मैं क्वेश्चन बना सकती हूँ 10 मार्क्स का, ठीक है ना। सो काइंडली पे अटेंशन एंड डिस्कशन में हिस्सा लो, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो और मुझे भी पता हो कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता।
मेरा सवाल अभी जो हमें अजहर ने जवाब दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, नहीं इज एक्सप्लेन दिस सेकंड पॉइंट, ठीक है। यूज एटलीस्ट वन पीस ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट, ठीक है, कि अगर आप जो भी कह रहे हैं तो उसमें किसी बुक का नाम, अगर कोई बुक की किताब है तो सिर्फ ये कह देना कि इट इज रिटन इन द बुक्स इज नॉट इनफ, यू शुड प्रोवाइड एविडेंस that authority or that person who, authority means who has a certain standing into with regard to that issue, उसको मेंशन करें, उसको रेफरेंस दें। उसके बाद मेरा सवाल जो एक्चुअल था वो ये था, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल, व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल, ये मैं क्यों कह रही हूँ? मैम हर लिहाज से उसे करेक्ट साबित करने के लिए, because our audience has variety of people, people are there with different mindsets, people are there with different social backgrounds, बहुत कुछ सेम होते हुए भी individual differences होते हैं, ठीक है ना। for example, you are addressing all the academic staff of your university, although they majority of them have the same, you know, academic or educational status, सारे PhDs हैं, सारे MPhils हैं, ठीक है, but still everyone is having a different individual experience mindset, so maybe something that can appeal or that can convince one person is not attractive or convincing for the other one, so use a variety of supporting material, get it, so that you can convince each and everyone. Why do I take so many different examples? मैं क्योंकि मेरे ऑडियंस में, मेरे स्टूडेंट्स में, although there is 30-40s में इस वक्त बच्चे हैं, but I know only 10 out of them would be listening to it, लेकिन वो 10 भी जो हैं उन सब के perceptions और mindsets different हैं. Of course I cannot have the actual idea or the know-how of each and every brain. मुझे आप में से अगर मेरे पास 10 ऑडियंस भी हैं इस वक्त, मुझे उनके बारे में आई कैन नॉट बी श्योर कि उनमें से कौन सा किस बात से समझेगा, सो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई कैन गिव यू अ वैरायटी ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल, ताकि सबको मैं अपने पॉइंट समझा सकूं और सबको उसमें इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो वो इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए, कन्विंस करना चाहती हूँ अपनी किसी उसके लिए तो वो कन्विंस कर लूँ, गेट इट। आप समझ आई कि नहीं ये बात? यस मैम। हाँ, और ऑफ कोर्स जितनी सपोर्टिंग मटेरियल होगा उतना आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है, और ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल भी हो जाएगा, बिकॉज यू हैव अ वैरायटी ऑफ ऑडियंस विद डिफरेंट माइंडसेट्स, सो इट वुड बी इजी टू गेट द मैसेज अक्रॉस। इस वक्त हमारा एम क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन या गुड कम्युनिकेशन स्किल मीन गेटिंग द मैसेज अक्रॉस and perceived the way you wanted to get it. मेरा इसको क्या एम है? मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ ना, मेरा एम ये है कि जो नॉलेज मैं देना चाह रही हूँ वो मेरे ऑडियंस में, बच्चों में एज इट इज इतनी अच्छी तरह उनको समझ आ जाए कि मैं उनसे कुछ भी पूछूं related to that topic, they are capable of answering that. So I should provide a variety of supporting materials. Understand? Yes. मेन पॉइंट इक्वली मतलब क्या? डेवलप ईच मेन पॉइंट इक्वली। हाँ, डेवलप ईच मेन पॉइंट इक्वली। मैंने आपको 3-4 चीजें बतानी है ना, तो ये नहीं है कि किसी एक को ऊपर तो मैं बहुत ज्यादा टाइम दे दूं और किसी दूसरे को बस ऐसे ही बता के गुजर जाऊं। ठीक है, ठीक, ओके। मतलब मुझे हर चीज को एक्सप्लेन करना है, गेट इट। और उसी के अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल मेरे पास टाइम शॉर्ट है अगर, तो मुझे अपना नंबर ऑफ पॉइंट्स कम कर लेना चाहिए। डिफरेंट वेज हैं फिर इसको अरेंजमेंट करने के, कि ये भी किया जा सकता है कि मैं ये बता दूं कि दीज आर द पॉइंट्स बट आई एम ओनली फोकसिंग ऑन टू दिस, कि मैं किसी एक को फोकस करूं, वो डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, कि मेरा पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल कोरोना के प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं तो मैं उसमें बता रही हूँ कि हैं तो बहुत से एसओपीज, बट राइट नाउ आई एम ओनली फोकसिंग ऑन why wearing a mask saves you from infection. मैं सिर्फ एक भी करूँ तो ये भी हो सकता है।
The introduction aids. Every speech should open with an introduction which contains attention getter and a preview of main points. ये वही हो गया जो आपके उसका essay का introductory paragraph है. It should consist of approximately 10% of the total speech time. This is important. ये जो time division है, जो main body थी उसका कितना time बताया था, कितने % total time का होना चाहिए, जल्दी से याद करके बताओ. 70 to 80 मैम. 70 to 80. Very good. इस बच्चे के 2 नंबर हो गए हैं. Approximately 10% of the total speech time should be spent on the introduction and should grab the audience attention. For example, audience questions. उसमें आप बात करते audience से question पूछ के कर लेते हैं. Hypothetical situation. आप एक मसलन मैं कहती हूँ जैसे हमने कोरोना के बारे में जब awareness. Sorry, I'm giving the example of corona again and again, but you can relate with it. तो आपको you must have remembered शुरू में जब आया, even I get an idea कि उसमें एक कोई डॉक्टर था, उसने कहा think of a situation जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 वेंटिलेटर्स हैं and we have a 50+ person and we have a 30+ person and we are selecting, मतलब कि हमें एक वेंटिलेटर और हमें ये सिलेक्ट करना है कि हम 30 साल को बचा लें कि हम 50 साल को बचा लें. Think of yourself into that situation because you have a few people in your family who are 50+ and few people of your family who are 30+. तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो ये मत लें कि कोई बात नहीं, अगर हो गया तो देखा जाएगा. कि लोग इस तरह से लाइट ले रहे थे ना कि अच्छा जी हो जाएगा तो कर लेंगे, देख लेंगे. कि प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, ताकि हॉस्पिटल्स पे बर्डन ना बने, क्योंकि फिर हॉस्पिटल में हमें ये जो तो एक हिपोथेटिकल सिचुएशन बता दी ना, हिपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर ऐसा हो जाए तो think of that thing and then kindly start taking precautions and avoid people's contact, ताकि लोगों में फैले ना, कि आप शायद बच जाएंगे मगर किसी के लिए ऐसी सिचुएशन हो जाएगी. सो आप ऑडियंस से कोई सवाल कर सकते हैं, आप हिपोथेटिकल सिचुएशन प्रेजेंट कर सकते हैं, कोटेशन, किसी की कोई कोटेशन दे सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स, कुछ फिगर्स, कुछ नंबर्स दे सकते हैं कि ये हो रहा है, और यू कैन टेल अ स्टोरी. दिस इज वो इंट्रोडक्टरी एड है जो आप पहले बहुत जिसके बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है. Conclusion. After completing main points of the speech, pause for 1 or 2 seconds to give your listeners to focus on your final words. Remember, pause, because इस वक्त हम रिटर्न नहीं दे रहे, हम इस वक्त लोगों के सामने खड़े होके बोल रहे हैं. तो जब मेन बात सारा कुछ कर लिया, then just stop, give a small pause. Review the main points of your speech in 1 second. You have only 1 second. और वही वाली बात, tell them what you have told. This conclusion should only take 10% of your speech time. Present a final thought using one of the following devices: appeal, call to action, vision for the future, return to the attention. ठीक है. और दोबारा से इसको आपने रैप अप कर दिया, आपने अपनी कोई अपील कर दी, जैसे मैंने बोला, मैं सॉरी आई एम गिविंग अगेन द एग्जांपल, मैंने अपील कर दी फिर से, काइंडली स्टे एट होम. ठीक है. कॉल टू एक्शन, स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशंस टुडे, विजन फॉर द फ्यूचर, वी आर होपिंग फॉर गुड थिंग, कोई भी इसमें से लें, और रिटर्न टू द टेंशन गेटर, जो शुरू में कहा था उसी से दोबारा रिलेट कर. गेट इट? So this way you are going to conclude your speech. Now, this is a guideline for effective delivery. Be an ethical speaker. अगर आप चाहते हैं आपकी वर्ड्स का लोगों पे असर हो जाए तो एथिकल बने, झूठी बातें नहीं करें. नेचुरल स्पीकर, खुदा के लिए कोई एग्जैजुरेटेड स्टाइल मत अपनाएं, शाहरुख खान बन के बोलने की कोशिश मत करें. ठीक है. ड्रेस अप्रोप्रिएटली, वॉक कॉन्फिडेंटली, पॉज बिफोर स्पीकिंग, पॉजेस देना बहुत जरूरी है. लुक एट योर ऑडियंस, उनको फेस करें, उनके साथ आंखों में आंखें डाल लें थोड़ी सी, मतलब आई मीन ढिठाई नहीं, बट कॉन्फिडेंस शो करें. स्टैंड एंड मूव नेचुरली. अगर आप खड़े होकर बोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे टेंस फॉर्म में खड़े ना हो. ये सारी चीजें अगर हमारी क्लासरूम एक्टिविटी हो जाए तो यू वुड बी एबल टू ऑब्जर्व इनटू अदर कि ये हाउ मच दे इफेक्ट द ऑडियंस. हम जब खुद बोल रहे होते हैं तो हमें नहीं एहसास होता हमारी इन चीजों को दूसरे लोग कितना नोटिस कर रहे हैं, लेकिन जब हम अगर दूसरों की नोटिस करते हैं तो वी शुड मेक इट कि हम भी नोटिस किए जा रहे हैं, तो वी शुड पे अटेंशन टू ऑल दिस.
stand and move naturally, gestures for emphasis, यानी जो हम हाथ वगैरह हिलाते हैं ना, वो कि जब मैं किसी बात को, आपने देखा होगा क्लास में जब टीचर किसी बात को एकदम से एम्फसाइज करने लगता है, ऑटोमेटिकली दिस हैपेंस समटाइम्स ऑटोमेटिकली, एंड योर स्पीच कॉन्फिडेंटली। आखिर में जब आपने कोई ये वाली जो चीज बात थी, अपील या कॉल टू एक्शन या विजन फॉर द फ्यूचर, ये बात करनी है, तो एक सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि आपने लोगों को बहुत कुछ बता दिया, वो आपका शो होना चाहिए। यूज नोट कार्ड्स। ये नोट कार्ड्स क्या होते हैं? ये अगर if there are many points and you are fearing that you may forget anything, तो स्मॉल सा छोटा सा एक उसके ऊपर नोट कार्ड भी आप अपने पास रख सकते हैं। पूरे पूरे लंबे पर्चों पे से नहीं पढ़ना होता, यू आर नॉट अलाउड टू रीड आउट फ्रॉम लॉन्गर नोट्स, स्मॉल नोट कार्ड्स आप रख सकते हैं, क्यू कार्ड्स भी जिन्हें हम कहते हैं। So now practicing your speech, practice 3 days in advance, practice 5 to 10 times, practice in a quiet room, practice in standing position, time your practice session, most important. अपनी स्पीच का टाइम नोट करो, कितनी देर में आप बात पूरी करते हो। रिकॉर्ड योर प्रैक्टिस सेशन। आजकल तो रिकॉर्डिंग बड़ी आसान है, रिकॉर्ड कर लो, खुद ही देखो, खुद ही उसको देखो कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। एवेल्युएट योर प्रैक्टिस सेशन। गेट इट? एवेल्युएशन में क्या चीजें रखनी है, किस चीज को एवेल्युएट करना है? कंटेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, डिलीवरी को। जब आप एवेल्युएट कर रहे हैं तो ये 3 चीजें देखनी है। मैंने क्या बोला था, मैंने किसी ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड वे में बोला था कि नहीं? व्हेन आई वाज स्पीकिंग, हाउ वाज माय डिलीवरी? मेरा एक्सेंट, मेरी स्पीड, अटरेंस की स्पीड, मेरा बॉडी जिसे कहते हैं ना लैंग्वेज, ये सब चीजें कैसी थी? So while you are evaluating your practice session, focus on these 3 areas. Now there is an acronym: SPEAK. S, see yourself as others do. P, prepare to learn about yourself. E, experience reduces stress. जितना ज़्यादा experience हो जाएगा उतना आपका stress level low होता है. A, audience is your friend. Believe into this कि ये आपके friend हैं. के कीप द स्पीच इन पर्सपेक्टिव। इधर उधर की बातें मत करो, फोकस्ड रहो। इज इट क्लियर? यस मैम। एनी मैम क्वेश्चन? हाँ, खत्म हो गई है। अब मैं इसको अपलोड भी कर दूंगी। और मैम पिछले लेक्चर की भी अपलोड कर दीजिएगा। कौन सी बेटा? मैम पिछले लेक्चर की यही तो था पिछला लेक्चर, इसी में से आधी स्लाइड्स पढ़ाई थी। वो ब्लैक वाली स्लाइड्स थी। वो हो ही नहीं। Ma'am, 7 C's अपलोडेड नहीं है। ओके, आई विल अपलोड दैट। गेट इट? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? किसी को कोई प्रॉब्लम हो? अच्छा, आपको मैं अपलोड करूंगी, आपने इस प्रेजेंटेशन की एक एक वर्ड के ऊपर फोकस करना है। क्यों? अगर आपकी स्पीकिंग एक्टिविटी क्लास में हुई, यू वुड बी रिक्वायरिंग ऑल दीज थिंग्स। इवन अगर मैं स्पीकिंग एक्टिविटी नहीं होती, कैंपस नहीं खुलता, इसी के ऊपर बेस्ड आपके मेट के क्वेश्चंस होंगे। मैम मेरे 2 नंबर पक्के हो गए हैं। कैसे? हाँ, तुम्हारे 2 नंबर पक्के हो गए इस वक्त। वो क्लास पार्टिसिपेशन के हैं, मिड के नहीं है। ठीक है मैम। गेट इट? अब कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, मैं इसको अपलोड कर दूंगी। आई विल मेक श्योर दैट आज ही अपलोड हो जाए, तो फ्राइडे की क्लास में आप अपने इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस अगर हैं तो पूछ सकते हैं, और अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑन फ्राइडे। Okay, is it all? Should I end? Yes मैम। Yes, 133. Is there any question? नहीं है बच्चों? So I am ending it. Bye bye. Khuda Hafiz. See you all on Friday. Okay, ma'am. Love.